Welcome viewers. Today I am going to introduce video for class 11 commerce students. Commerce students related with CBSE board, ICSE board, JAC board or different state boards of India. This video especially for accountancy subject and useful not only for commerce 11 students but also all the beginners in the field of commerce and accountancy subject. This video is also useful for business class of the society. जैसा कि हम आपको बतलाए, आज आपके सामने में हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए कॉमर्स 11 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं। इस वीडियो में विशेष रूप से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जानकारी कराई जाएगी। सीरीज ऑफ वीडियो में विशेष रूप से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जानकारी कराई जाएगी और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट न सिर्फ क्लास 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, बल्कि किसी भी फील्ड में अगर वो कॉमर्स की जानकारी की शुरुआत करता है या आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर भी उपयोगी है। साथ ही साथ बिजनेसमैन को भी कॉमर्स या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी पड़ता है। जब हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात करते हैं, जानकारी देने की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल before introducing accounting or accountancy, need to know about business and business activities. First of all, business. As we know, each and every person defined business as their activities. सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले हमें जरूर जानना चाहिए कि व्यवसाय और व्यवसाय की क्रिया के बारे में। व्यवसाय के बारे में जहां तक हम आपको बतलाएं, किसी भी विद्वान की परिभाषा को देख लें, इवन इनएक्सपीरियंस पर्संस को देख लें, बिजनेस के बारे में सभी की एक ही राय है, वह उसके क्रियाकलापों से बतलाता है। किसी भी आदमी से आप पूछिए व्हाट इज बिजनेस, तो ईच एंड एवरी पर्सन एक्सप्लेन बिजनेस एज देयर एक्टिविटीज लाइक परचेजेस, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. These are called as business. Then next point is what activities included in business. अब हमारा अगला तथ्य है कि आखिर व्यवसाय में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जा सकता है। The first point is or beginning of business is from production activities and aims at consumption activities. Production by producers and consumption by consumers. The objective of producer is to produce at minimum cost and the best quality. From producers and up to consumers, the process to deliver the goods. Popular way for delivering the goods is through agency, wholesaler, retailer, combined known as middleman, and their activities is to purchase and sell. For entire business activities by producers or by trader, purchaser or seller need to take services, and all such services is included in service render activities such as advertising, finance, banking, insurance, marketing, salesmanship, etc. These services in business language is termed as commercial services. In business language, purchases and sale activities is called as trading activities, and in business language, production activity is called as industrial activities. And the objective of middleman and service render activities persons are only objective is to earn more and more profit, but the producer's objective is to produce at minimum cost and of best quality. If they succeed
in producing a best quality at minimum cost, profit will be there. But ultimate objective of entire business activities is to earn more and more profit. Now, it is essential to record entire business transactions to find the profit or loss amount of business. बिजनेस ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज का अर्थ होता है वैसे सभी लेन देन जो सुबह से शाम तक कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यवसाय के स्थान पर अपने व्यवसाय से संबंधित किया करता है। ऐसे सभी लेन देनों को अब हमारी जरूरत है लिखने का, जिससे कि उस व्यवसाय के लाभ और हानि को हम ज्ञात कर सके, निकाल सके। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इन बिजनेस के लेन देनों को कौन लिखेगा और कहां पर लिखेगा। तो इस बात को जानने से पहले हमेशा याद रखना है बाय whom एंड फ्रॉम वेयर और वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कहां पर लिखना है और किसके द्वारा लिखना है। इस क्रम में हमेशा याद रखना है। ये बहुत याद रखने वाली बात है हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए। हर एक स्टूडेंट्स को इस बात को हमेशा याद रखना जब भी वो अकाउंटिंग करने बैठता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ बिजनेस बाय बिजनेसमैन और एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लेन देनों को व्यवसाय के रजिस्टर में लिखना है उसके मालिक के द्वारा या व्यवसाय के कर्मचारियों के द्वारा। याद रखना है व्यवसायी का कर्मचारी नहीं है, हाँ बिजनेस का अपना हाथ पांव नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से उसके लेन देनों को उसके लेन देनों को लिखने का काम अगर छोटे आकार का बिजनेस है तो बिजनेसमैन स्वयं करता है, और अगर बिजनेस का आकार प्रकार बड़ा है तो बिजनेस के काम को करने के लिए बिजनेस के एम्प्लॉई को अपॉइंट किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है बिजनेस के लेन देन को बिजनेस के एम्प्लॉई के द्वारा बिजनेस के रजिस्टर में लिखा जाता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, यहां पर देख रहे हैं दो टर्म है, नंबर 1 इज बिजनेस एंड नंबर 2 इज ट्रांजैक्शंस। एज अर्लियर बिजनेस डिफाइंड, जैसा कि हम पीछे में बिजनेस के बारे में बतला चुके हैं। दूसरा टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस मस्ट इंक्लूड नंबर 1 टू रिसीव एंड टू गिव, एंड नंबर 2 आइदर इन सेम टाइम, रिसीविंग और गिविंग आइदर इन सेम टाइम if it is so is called as cash transactions, or in different time is called as credit transactions. And number 3 and most important point for being transaction is either to receive or to give or both must be at present. इस तरीके से हम आगे बढ़ने से पहले बिजनेस और बिजनेस के लेन देनों के बारे में जरूर जानना चाहिए। बिजनेस के बारे में तो हम बतला चुके हैं कि बिजनेस क्या है। अब उस बिजनेस के लेन देन से क्या मतलब है, लेन देन से क्या मतलब है, तो लेन देन के बारे में स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें आवश्यक है। नंबर 1 लेना भी होना चाहिए और देना भी होना चाहिए। लेने और देने का समय क्या होगा, तो समय के संदर्भ में दूसरा पॉइंट कहा जाता है लेना अगर और देना दोनों एक ही समय में है तो इसे हम नगद लेन देन के नाम से जानते हैं, अथवा लेने और देने का समय अलग अलग है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम 100 रुपए ले जाकर के कोई सामान दुकान से ले आते हैं, तो इस स्थिति में पैसे के रूप में देना अभी हो रहा है और सामान के रूप में लेना अभी हो रहा है, एक समय में हो रहा है, इसे हम नगद लेन देन कहते हैं। और जस्ट अपोजिट हम 1 महीने मकान में रह करके और उसके बाद किराए का पेमेंट करते हैं तो इसमें सर्विस हम अभी ले रहे हैं और पेमेंट 1 महीने के बाद कर रहे हैं। इसमें लेने और देने का समय डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट लेन देन पीरियड होने से हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या उधार लेन देन के अंतर्गत शामिल करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है लेन देन बनने के लिए, ट्रांजैक्शंस बनने के लिए, कि या तो लेना या देना या दोनों आज जरूरी। अगर आज कुछ नहीं हुआ इट मीन्स देयर इज नो ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डरिंग फॉर गुड्स, हमने माल के लिए आदेश दिया, ना सामान आया और न ही हमने पैसे का पेमेंट आज किया, आज कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये लेन देन नहीं। और हम लेन देनों को लिखने बैठे हैं, हमेशा याद रखना है जो लेन देन नहीं है उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी।
और लेन देन के लिए जरूरी है कि लेना भी होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। लेने और देने का समय एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन या लेना या देना या दोनों कंपलसरी है कि आज जरूर कुछ होना चाहिए। इसके बाद हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसकी अकाउंटिंग से संबंधित, उसकी जानकारी देंगे। उसमें पहला है बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी और तीसरा है अकाउंटिंग। अगले वीडियो में हम इन्हीं 3 टर्म की व्याख्या करेंगे, जानकारी देंगे। थैंक यू।